Hello everyone, welcome to my channel Bio for You. So in this video what I'm going to discuss, that is, as we know that already the board exam for class 10 that is completed, and I think in different CBSE schools their home exam or school exams, annual exam, that is also completed. Now some students from class 9 are going to be promoted to the class 10. Now in class 10 standard in science, the physics, chemistry, biology, all these things are included in the same book. Now in this biology portion of the science book, there are few chapters that you need to study. Okay, now you know that in class 9 standard only there were three chapters mainly that you have to study. Now in class 10 standard there are five chapters of biology portion, right? So the first chapter of the biology portion, that is life processes. Okay, now the thing is that how will you study, how will you read the NCRT, what are the different topics that we need to study from the life processes. First of all, listen very carefully. If you want to get a very good score, okay, and more than this, that is understanding of the topics, understanding of the concepts, okay, that is very important for your, in higher classes after class 12 standard you have to sit for different competitive examination. So if you don't have any kind of clear cut concept, so you will not be able to make the answers of difficult type of questions. That for that reason your concept should be crystal clear. Now in this video I'm going to discuss about different topics that you need to read from the life processes chapter. So what is the first topic? That is, in this chapter, first thing that you need to study, that is what is life. So the name of the chapter is life processes. So first thing, the first question that you need to study, that is what is life. Okay, and secondly, there is a questions, are we made up of molecules? Okay, all these things. So what is life, life क्या होता है, and are we made up of molecules? So you know what is molecules, जो atom से बनते हैं, molecules बनते हैं atom से. तो क्या हम molecules से बना हुआ है? What is the how we are created? So you know that in class 9 standard you have studied that our structural and functional unit, that is called the cell. तो ये जो सेल होता है ना, तो सेल में बहुत सारा रिएक्शंस होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलता है. तो ये सेल किससे बना हुआ है? तो हम लोग जो वी ह्यूमन बींग्स और ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स. सो इस सेल का कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें कौन सा मॉलिक्यूल्स है? सो आर वी मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्वेश्चन है. नेक्स्ट, the thing that you need to study, that is living versus नॉन लिविंग. क्लियर? तो किसको हम लिविंग बोलेंगे, किसको हम नॉन लिविंग बोलेंगे, ये चीज़ है. देन व्हाट अबाउट वायरसेस? तो वायरस क्या होता है, वायरस का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या हम वायरस को लिविंग बोल सकते हैं, क्या हम वायरस को नॉन लिविंग बोलेंगे? दैट इज द थिंग दैट यू नीड टू स्टडी. नेक्स्ट, वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ? ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल से बना हुआ है हम लोगों का जो बॉडी है, इन आवर बॉडी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड दिस मॉलिक्यूल्स दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो ये जो मॉलिक्यूल्स है इसका मूवमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? ओके, सो व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ? ठीक है. नेक्स्ट हमको जानना है कि ये जो लाइफ प्रोसेसेस बोला है, प्रोसेसेस क्या होता है? ओके, सो लाइफ प्रोसेसेस, और जिसको हम बोल सकते हैं कि मेंटेनेंस प्रोसेसेस. क्लियर? because we know that living organisms are well organized structure. So there are unicellular organism, multicellular organism. So if we talk about the human beings, we human beings are multicellular organism. We are very much complex type of organism, right? Because we have cells are organized into tissues, then tissues to organ, then organ system. So we are a well organized structure. ठीक है, तो बॉडी में बहुत सारा चीज़ें होता है जिसको बॉडी को मेंटेन करना, मेंटेनेंस ऑफ द डिफरेंट थिंग्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्या क्या मेंटेनेंस प्रोसेस होता है, कैसे बॉडी में डिफरेंट थिंग्स को मेंटेनेंस किया जाता है, सो ये चीज़ हमको स्टडी करना है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट
फास्ट मेंटेनेंस प्रोसेस और द लाइफ प्रोसेस में फास्ट जो चीज़ हमको स्टडी करना है दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन क्या चीज़ होता है, व्हाट इज न्यूट्रिशन? सो न्यूट्रिशन में फास्ट वी हैव टू स्टडी दैट इज व्हाई डू वी नीड फूड, ठीक है। हम फूड क्यों लेते हैं, why do we need food, why food is very important. Then we have to study that mode of nutrition, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो तरह का न्यूट्रिशन होता है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अनदर इज कॉल्ड द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये थोड़ी बहुत आपको पता है, तुम लोगों को पता है, यू नो दिस व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक लाइक यू नो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो चीज़ आपको स्टडी करना है दैट इज़ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। क्लियर, फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच द फूड इज प्रिपेयर्ड। बट हेयर इन क्लास 10th स्टैंडर्ड यू हैव टू स्टडी फोटोसिंथेसिस इन लिटिल बिट डिटेल्स कि भाई फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या इवेंट्स होता है, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू स्टडी। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो टाइप होता है क्या क्या होता है, एक होता है सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक होता है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और एक होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो दिस थ्री टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यू हैव टू स्टडी। क्लियर। नेक्स्ट यू हैव टू स्टडी द न्यूट्रिशन इन द एमीबा एंड पैरामीशियम। तो एमीबा और पैरामीशियम में कौन सा, देखो एमीबा और पैरामीशियम जो होता है उसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाता है, ठीक है। तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, एमीबा कैसे फूड को इंटेक करता है, पैरामीशियम में कैसे फूड घुसता है, उसके बाद उस फूड का क्या होता है, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू स्टडी। नेक्स्ट जो आता है दैट इज द न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के अगर न्यूट्रिशन की बात करें हम, सो वी हैव टू स्टडी द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। सो ऑलरेडी इन क्लास 7th स्टैंडर्ड यू हैव लिटिल बिट आइडिया द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या क्या, देखो ये एक सिस्टम होता है ना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सिस्टम किससे बनता है, सिस्टम बनता है ऑर्गन से, ठीक है। तो क्या क्या ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होता है, ह्यूमन डाइजेशन में हेल्प करने वाला कौन सा ऑर्गन्स होता है, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू स्टडी। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इज वेराइटीज ऑफ एंजाइम्स secreted from different organs and their functions, ठीक है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जो ऑर्गन्स इंक्लूडेड होता है उसमें से कौन सा एंजाइम क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी। एक कैटालिस्ट है, बायो कैटालिस्ट, ठीक है। इस एंजाइम को हम क्यों बायो कैटालिस्ट बोलते हैं, तो डिफरेंट ऑर्गन्स से क्या क्या एंजाइम रिलीज होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू स्टडी। उसके बाद जो है दैट इज रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है, मतलब रेस्पिरेशन एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है, बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन होता है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ एटीपी। क्लियर। तो रेस्पिरेशन में फर्स्ट वी हैव टू स्टडी दैट सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। कि कैसे बॉडी में एटीपी जनरेट होता है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर ए प्रोसेस बाय व्हिच एटीपी इज जनरेटेड, ठीक है। एटीपी का मतलब यू नो दिस व्हाट इज एटीपी, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू स्टडी दैट व्हाट इज एटीपी, एटीपी क्या होता है, ठीक है। एटीपी बनता कैसे है, एटीपी होता क्या है, उसका थोड़ा स्ट्रक्चर वगैरह हमको देखना पड़ेगा कि एटीपी कैसा होता है। उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, ठीक है। क्लियर। कहाँ पर होता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव टू स्टडी द हाउ डज एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन प्लांट्स, ओके। तो प्लांट्स में ऐसा क्या होता है जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कौन सा गैसेस का एक्सचेंज होता है प्लांट में, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा गैस होता है जो प्लांट को फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ गैसेस दैट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो कैसे बाहर निकलता है, ठीक है, डिफ्यूशन, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू स्टडी। नेक्स्ट one more most important thing that you need to study, that is respiratory system of human being. Again it is a system, so it is made up of different organs, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, लंग्स वगैरह जो चीज़ होता है उसको हमको डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। क्या क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, नॉस्ट्रिल, नजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियल्स, ऑल दिस थिंग्स, ओके। जो टोटल जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वी हैव टू स्टडी। नेक्स्ट थिंग
दैट इज ब्रीदिंग मेकानिज्म दैट यू हैव टू स्टडी ब्रीदिंग मेकानिज्म, ठीक है, कि ब्रीदिंग कैसे होता है हम लोग में। सो इंस्पिरेशन क्या होता है, एक्सपिरेशन क्या होता है, दैट मीन्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कैसा होता है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो हम लोगों के बॉडी में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, मेकानिज्म क्या है, दैट थिंग यू हैव टू स्टडी। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में देखो अभी हमने एक चीज़ बोला कि बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कौन इन्वॉल्व होता है, ठीक है, किस वो मीडियम क्या है जिसके थ्रू ये गैसेस ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। सो इन ट्रांसपोर्टेशन यू हैव टू स्टडी द ह्यूमन हार्ट, ठीक है, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर। सो ह्यूमन हार्ट यू नो इट इज़ द पंपिंग मशीन, सो इसका स्ट्रक्चर यू हैव टू स्टडी। देन डबल सर्कुलेशन क्या होता है, हार्ट में सर्कुलेशन, ब्लड को कैसे सर्कुलेट किया जाता है हार्ट के थ्रू। देन सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म में सिंगल सर्कुलेशन मिलता है। उसके बाद ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स, मतलब आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, ये जो होता है ब्लड वेसल्स, उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। नेक्स्ट, कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड, दैट मीन्स ब्लड का क्लॉटिंग कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट, लिम्फेटिक सिस्टम, जैसे हम लोगों का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, दैट मीन्स वी हैव द आर्टरी, वेन्स जिसके थ्रू ब्लड जाता है, तो ऐसे लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है जिसके लिम्फ वेसल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट पैरेलली विद द ब्लड वेसल्स एंड थ्रू दैट लिम्फ वेसल्स द लिम्फ दैट इज ट्रांसपोर्टेड। तो ये लिम्फ क्या चीज़ होता है, कैसे लिम्फ बनता है, लिम्फ का फंक्शन क्या है, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू स्टडी। नेक्स्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में क्या आपको स्टडी करना है, वस्कुलर टिश्यूज इन प्लांट्स, ठीक है, वस्कुलर टिश्यूज मतलब जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, उसका कंपोनेंट्स थोड़ा बहुत इसको स्टडी करना है, ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन द क्लास 9 स्टैंडर्ड। उसके बाद जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय जाइलम, कैसे जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन कैसे होता है, ठीक है, उसका कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर कॉलम कैसे बनते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पूल क्या है, रूट प्रेशर क्या है, ओके, इसको बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप, क्लियर, ascent of sap, all these things in details you have to study. Then conduction of the food by phloem, जिसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, मतलब इन फोटोसिंथेसिस द फूड इज प्रिपेयर्ड मेनली इन द लीव्स, तो लीव से जो फूड मटेरियल है किस फॉर्म में प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द मेकानिज्म, तो मेकानिज्म क्या है उसको थोड़ा डिटेल्स में स्टडी करना है। एंड द लास्ट टॉपिक दैट इज द एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन में फर्स्ट यू हैव टू स्टडी द वेस्ट मटेरियल जनरेटेड बाय द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ठीक है, तो क्या क्या वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, ठीक है, कौन सा बहुत हार्मफुल होता है। उसके बाद ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब जो होता है ना किडनी, उसके बाद यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरेथ्रा, ऑल दिस थिंग, उसका थोड़ा डायग्राम चाहिए, उसका स्ट्रक्चर डिटेल्स में स्टडी करना है। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, ओके, नेफ्रॉन क्या होता है, फिल्ट्रेशन यूनिट जो होता है ना किडनी के अंदर, ओके, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर देयर, तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यू हैव टू स्टडी, ओके, क्लियर। नेफ्रॉन में क्या होता है, ग्लोमेरुलस क्या है, बॉमेंस कैप्सूल क्या है, पीसीटी क्या है, लूप ऑफ हेनली, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ऑल दिस थिंग्स एंड डिफरेंट जो रेनल ट्यूब्यूल्स है उसका क्या रोल होता है। उसके बाद हाउ इज यूरिन फॉर्म्ड, यूरिन का फॉर्मेशन क्या होता है, क्या मैकेनिज्म है। उसके बाद यू हैव टू स्टडी द हीमोडायलिसिस, मतलब जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी क्यों चाहिए। एंड एट लास्ट टॉपिक दैट इज द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स कैसे एक्सक्रीट होता है, प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, प्लांट्स क्या क्या चीज़ एक्सक्रीट करते हैं, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू स्टडी। सो दीज आर द मेन टॉपिक्स दैट हैव टू स्टडी फ्रॉम द लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर, बट ये जो टॉपिक्स है उतना उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, तो उस कॉन्सेप्ट को अगर डीपली यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट डीपली, तो यू हैव टू रीड द एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, और उसको कैसे हम पढ़ेंगे तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में हम डाल देंगे, ठीक है, कैसे आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, कैसे एनसीईआरटी से चीज़ों को निकालना पड़ेगा, ऑल दिस थिंग, हाउ टू मेक नोट्स, so everything will be discussed gradually, okay, so thank you so much and start studying, don't waste your time.